I was a content whore. I was posting so much. One of the biggest issues people have is बाल कम हो रहे हैं. Before niche hair, it was called wigs. किसी को अगर बाल चाहिए भी होते थे वो टैबू था. You know, a lot of creators and a lot of brands, they are running after virality these days. I do like to call myself a flag bearer of founder-led content. My only hook was मैं निकाल देती थी अपने बाल और दिखाती थी and everyone would go like, whoa. I want to know this for the audience. आपका marketing department कितना बड़ा है? I am the marketing department और मैं budget नहीं देती उन्हें because I just make reels. When you're selling a product, is it harder for you because they can come to you and be like, "Parli hair extension ठीक नहीं है." So many times it happens that people will start asking कि अच्छा हम पे क्या product जाएगा. वो consultation starts anywhere. क्या हुआ था Shark Tank में? What was that experience? This is something I've never shared with anybody. Can you please put your hands together for Parul Gulati? Tonight we create what tomorrow follows. Bring light on, other vibes alive. Fresh new ideas, watch them all arrive. Phone P vision, hot men playing. I create a color brand. Over to you, Parul. आप प्लीज बताइए, you've created this massive business, you're a beautiful creator, but ये चालू कैसे किया? How did you decide कि मुझे hair extensions का business करना है? What was the problem? What was the issue? What was the solution? This is something I've never shared with anybody. I would do a lot of TV commercials. So there was this one model who I was sharing my vanity van with. She was working with Hindustan Unilever. She was modeling, and at the same time, she had her own brand called Neemly at that point. And I think I kind of owe it to her because I looked at her and I was like, she has her own business also, acting also, and she's doing a full time job also. How is that possible? And I was like, only a woman can do that. And I want to have a business of my own. And that day it became very strong. मुझे business idea चाहिए. And little did I know, the idea I already had. A gap in the market which nobody was solving. Nobody was making hair extensions. Before niche hair, it was called wigs. किसी को अगर बाल चाहिए भी होते थे वो टैबू था. They were like, we can't speak about it. So I was like, अब एक तीर से चार निशाने. एक तो accessible बनाना है, online बनाना है, affordable बनाना है, and ये टैबू break करना है कि it's just wigs. So it all started with a lot of passion, lot of ideas, and as you mentioned, सिर्फ 5,000 से शुरू किया था. How I got here, God is only witness. But Parul, this is very interesting कि hair extension, I think one of the biggest issues people have is, you know, बाल कम हो रहे हैं. And it's, you know, it's a problem that you're embarrassed to talk about. But you actually owned it कि, you know, हम problems को hide करने की कोशिश करते हैं. And आपने उसको actually, and because it's something you've experienced, you know कि I can do something about it. 100% because I was like, और जब मैंने शुरू किया 2017 में, there was nothing called creators, actual creators, or it became a proper professional after 2020. उससे पहले I was just making content and I also wanted like everybody, मुझे था कि मुझे एक ब्रांड का फेस चाहिए, मैं खुद कैसे करूँगी, लेकिन था जब तक मैं अफोर्ड नहीं कर पाती किसी बड़े आर्टिस्ट को, किसी बड़ी एक्ट्रेस को टू बी द फेस ऑफ माई ब्रांड, तब तक मैं खुद ही वीडियोस बना लेती हूँ क्योंकि कोई ऑप्शन तो है नहीं, मैं किसको लेकर आऊँ. एक तो वो पैसा लेंगे अगर मैंने उनसे वीडियो बनवाई, दूसरा मुझे उन्हें समझाना पड़ेगा. अब मुझे लगा इतना वक्त और पैसा लगाने से अच्छा फ़ोन लगाओ, वीडियो बनाओ और रोज़ डालते जाओ. क्या ही जाएगा, एक दिन जब बड़ी बन जाऊँगी तो श्रद्धा कपूर या कटरीना कैफ को ले आऊँगी. दैट वाज़ माय क्लियर कट प्लान. आई वांटेड श्रद्धा और कियारा. दीज़ वर माय 2 पीपल आई वांटेड टू बी माय ब्रांड एम्बेसडर. 3 इयर्स वेंट बाय. 2020 तक तो मतलब मैं आई वॉज अ कॉन्टेंट होर. आई वॉज पोस्टिंग सो मच. सो सुबह से रात तक आप बैठे रहो, कुछ नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हो, फ़ोन लगाओ, बनाते रहो. आई वॉज गोइंग लाइव एवरी डे ऑन माई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड दैट वॉज द ओनली वे यू नो. एंड आई थिंक उसके बाद, आई मीन, आई डू लाइक टू कॉल माई सेल्फ अ फ्लैग बेरर ऑफ फाउंडर लेड कॉन्टेंट. उस टाइम पे कोई नहीं कर रहा था, बट इट्स ईजी. एंड आई थिंक अगर सब ये कर पाए ना, आपका बहुत पैसा और वक्त बचेगा. जो आपका पहला प्रोडक्ट था, यू हैंड स्टिच्ड इट, आपने अपनी मम्मी के साथ स्टिच करके एक्सटेंशन भेजा था. व्हाट वाज दैट लाइक, एंड वो पहला कस्टमर कौन सा था, एंड व्हाट वाज इट लाइक सेंडिंग दैट फर्स्ट ऑर्डर?
गॉड पहला कस्टमर वाज तो मैंने मतलब फोर्स सेल किया था पहले कस्टमर को तो बट पहला प्रोडक्ट मशीन पे सिल्क के मेन बेसिक एक्सटेंशन में एक पीस लगाया भी हुआ है बट अभी मेरे बालों में डीप है मैं निकाल के नहीं दिखा सकती so it was like a basic filler that you can fit in here to add little thickness and how I got my first customer was I used to do a lot of TV commercials so I would have to audition for a lot of TV commercials so मैं जान के बैठती थी वहाँ पे और ऑडिशन में ना ऐसे 20 लोगों को बिठा देते थे और सामने ही ऑडिशन हो रहा होता था ऐसे कुछ सेपरेट रूम नहीं होते थे so I would purposely remove my extensions and be like ये पहन सकते हैं and then they would be like so सारी models would be like ये कहाँ से लिया कैसे बनाया and I'm like I made it you wanted this thing that thing and same thing I did on one of the shoots so this woman who was playing my mother I told her कि I'm making this do you want to see she's like हाँ मुझे चाहिए था कब से पर मेरे को सिर्फ 5,000 में चाहिए अब वो उसमें इतने बाल लगा के मैंने सोचा ठीक है मुझे सेल करनी है डजेंट मैटर 5,000 मेरी रिकवरी तो हो जाएगी इन्वेस्टमेंट की तो आइडली वो पीस अगर मैं बनाती तो वो 10-12 हज़ार का बिकता बट आई वाज लाइक नहीं मैं उनके घर तक गई उनका मेजरमेंट लिया उनका साइज कलर एवरीथिंग मैच्ड मेड द प्रोडक्ट she rejected it at first and she was like literally my trial and error my R&D was happening on a customer and she was paying me and again second time I went I fixed it I gave it to her and then finally she transferred the money to me and then I was like first sales बोनी बोनी हुई थी मेरी उसको 1 महीना लगा था कन्वर्ट करने में बट it was worth it her name is Menka and she's in a lot of TV shows and movies I'll later show you someday who she Thank I'll you post so about her थैंक यू सो मच फॉर मेनिका बट आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग कि हम बिजनेस ओनर्स या कंटेंट में हम ये सोचते हैं प्रोडक्ट परफेक्ट होएगा बट ऑफन यू जस्ट नीड टू पुट इट आउट देयर एंड 100% गेट स्टार्टेड बिकॉज हम वेट करते रहते हैं कि जब परफेक्ट होएगा तब बिजनेस चालू करेंगे बट आई थिंक व्हाट आई एम हियरिंग इज इट्स द होल जर्नी दैट यू जस्ट पुट योर सेल्फ आउट देयर एंड यू गेट द कस्टमर्स टू कम इन 100% आई थिंक एक आइडिया तभी अच्छा है अगर वो एग्जीक्यूट हो नहीं तो वो एक यूजलेस थॉट है आपके दिमाग में as simple as that if you have an idea execute it right there and then पता लग जाएगा ना क्या होता है 50-50% चांस है तो चलेगा है तो नहीं चलेगा चल गया तो वाओ करोड़पति नहीं चला तो इट्स फाइन कल करोड़पति नहीं तो परसों करोड़पति and you keep working and you keep Yes. sort of figuring that out. Love that. Little bit, you are a marketing genius, जो हमने समझा है, सीखा है. There's a very interesting photo I found. Can we get the little flea photo up? तो इसके बारे में कुछ बताइए. This was actually my last flea that I did, but I started niche hair from a flea market. Uh, I would put up a booth and show people what it is because I was like hair extensions कौन जानता है इंडिया में किसी को पता ही नहीं है तो I use this outlet as a space to stand outside and अगर कोई भी जा रहा है और मुझे दिख गया कि ये इस्तेमाल कर सकते हैं मैम I have salt and pepper hair do you want to come and try so I would really see what they have and if they want little thickness and then I would like just try it you don't have to buy I promise you don't have to just try it because my whole goal was सेल बाद में होगी पहले ट्रस्ट लाना है मुझे लोगों का पहले चाहिए लोगों को पसंद आए मैं क्या बना रही हूँ और नहीं आता था तो मैं पूछती थी क्या अच्छा नहीं लगा मुझे बताओ ताकि मैं बदल सकूं एंड मेरा फर्स्ट फ्ली वाज इन 2017 अक्टूबर और ये वाला आखिरी था मेरा उस तब तक मैं 12 लिल फ्ली कर चुकी थी तो जिस शहर में जाते थे मैं चली जाती थी my biggest was in Ahmedabad maybe there's one flea that this woman does so that's where I understood what people wanted and there I started making my first hair toppers first day I did 1 lakh and then I was like wow I'm in a great business it was insane then this one woman walked in she's like बेटा मेरे यहाँ बाल नहीं है मुझे यहाँ के लिए कुछ बना के दो मैं तब तक switches बना रही थी these are called hair clip-in extensions So the लंबा या लंबे लंबा बाल. जो भी आपकी लेंथ के हिसाब से आई विश आई कुड रिमूव एंड शो यू बट अभी नहीं कर पाऊंगी हेयर स्टाइल खराब हो जाए एंड फिर आपने फोटोज भी ली आप उनकी फोटोज लेके व्हाट्सएप ग्रुप्स में डालते थे नहीं मैं उनको कहती थी आप अपने हम्म। फोन से सिर्फ फोटो ले लो आपने ट्राई किया है ना
बिकॉज 90% ऑफ द टाइम्स अगर आपने किसी चीज़ की फ़ोटो ली है तो आपको वो फिर लगने लग जाता है अरे अच्छा तो था, ले तो लेना चाहिए था। एंड दिस डिड हैपन। अगर मैंने फ्राइडे फ्राइडे सैटरडे संडे को फ्री होता है, फ्राइडे को इफ दे टुक द फोटो, देयर वाज 90% ऑफ द पीपल हु वुड रिटर्न ऑन संडे और सैटरडे एंड बी लाइक अच्छा वो प्रोडक्ट दे ही दो हमें। इसलिए फ़ोन में फ़ोटो होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी आप किसी को कुछ ट्राई करा रहे हो, टेल देम एक वीडियो ले लो, बिकॉज़ पीपल कीप ऑन गोइंग थ्रू देयर photos To and actually get that. I hope all the entrepreneurs आप notes लिख रहे हो. There's lots of business secrets that we're telling right now. The second massive is आप Cannes गई थी and you did this dress that everyone spoke about. yeah, those of you can't Everyone's see, I'm wearing a dress made of niche hair. That's hair actually weaved into it. So This yeah. is actual real Hair. human hair. एंड फन फैक्ट इज इसका मुझे गाउन बनाना था, वो पर बाल कम पड़ गए उस वक्त और मुझे 2 दिन में जाना था। अदरवाइज आई वाज सपोज टू बी प्रॉपर गाउन विद अ ट्रेन, सो इट एंडेड हियर, इट बिकेम अ टिंकरबेल ड्रेस, बट आई वाज वेरी हैप्पी। इट वाज मेड बाय मोहित राय इत्र, they designed it for me and I was going on world's biggest stage और मुझे लगा मैं फ़िल्म फेस्टिवल में जा रही हूँ और मेरे पास फ़िल्म तो है नहीं, लेकिन यहाँ आर्टिस्ट तो बहुत आते हैं, मैं कुछ तो रिप्रेज़ेंट करूँ। आई रिमेंबर मेरी इतनी फाइट हुई थी मेरे मैनेजर से, दे वर लाइक नहीं वेयर अ नाइस साड़ी, लॉन्ग हेयर, अपने बाल दिखाओ। आई वाज़ लाइक नो, आई वांट टू वेयर माय हेयर, लाइक आई वांट टू वेयर इट ऑन मी एंड इट बिकेम अ मोमेंट इन टाइम व्हिच इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। And everyone spoke about it nationally, internationally. Niche hair was a thing. So this was just an idea जो आपको आया and you just had the gumption to actually go ahead and try it. Dude, I was dreaming of this from 3 years कि मैं कभी मेट गाला में जाऊंगी तो हेयर गाउन पहनूंगी एंड देन या फिर कोई भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेज होगा, मुझे बालों का ड्रेस पहनना है, वो बड़ा क्लियर था मेरे दिमाग में। कल को अगर मैं बर्तन बना रही होती मैं बर्तन पहन के भी चली जाती, आई एम क्वाइट केपेबल, बट इट वुड बी couture फॉर श्योर। So I think it's the passion कि आप you had that passion for your product essentially with a lot of creators and a lot of brands they are running after virality these days. कि वायरल मूवमेंट बन जाएगा बट एट द अदर एंड वो ब्रांड नहीं बना रहे होते हैं तो कितना इम्पोर्टेंट है टू गेट अ वायरल मूवमेंट एंड हाउ डू यू रियली डू दिस ब्रांड क्रिएशन सी वायरलिटी आपको मिल सकती है बहुत इजीली, कोई भी हुक क्रिएट करके, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप करके वायरलिटी ला सकते हो, लेकिन उससे सेल नहीं आती। मेरी मोस्ट वायरल रील मुझे सेल नहीं ला के देती है। सेल उससे आती है जिसके अंदर आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बात कर रहा होता है या प्रोडक्ट के बारे में समझ आ रहा होता है। विद इन 3 seconds इफ यू कैन शो द ट्रांजिशन विद द प्रोडक्ट। सी आई गॉट लकी विद हेयर एक्सटेंशन, माई ओनली हुक वॉज मैं निकाल देती थी अपने बाल और दिखाती थी एंड एवरीवन वुड गो लाइक वो। सो कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पॉर्टेंट, बीइंग कंसिस्टेंट। आप रोज पोस्ट करते रहिए, रोज कंटेंट क्रिएट करके एडिट करके डालते रहिए। गिव योरसेल्फ अ टारगेट, लाइक हाउ यू हैव अ टारगेट कि प्रोडक्ट बनाया है, अब उसको फिनिश करना है, उसको शेल्फ्स तक लेके जाना है, इफ इट्स अ प्रोडक्ट दैट यू वांट टू पुट इन रिटेल स्टोर्स। सेम वे वो कंटेंट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि दिखता है तो बिकता है, तो बहुत पुरानी कहावत है। सो अगर आप दिखाएंगे ही नहीं अपना प्रोडक्ट, और आजकल सब सोशल मीडिया पे हैं, टीवी एड्स, बिलबोर्ड्स, आप जितना खर्चा कर लें सब तो फ़ोन में देख रहे हैं, कोई देख ही नहीं रहा है ऊपर फ़ोन से। सो इतना ईज़ी है आजकल ये करना, बस रेगुलैरिटी रखिए और ऐसी चीज़ों को टारगेट करिए जो पीपल कंज़्यूम कर रहे हैं। यू कैन हैव अ मिक्स ऑफ बोथ। सो फॉर एग्जांपल हम निशर पे 3 पोस्ट करते हैं रोज़। सुबह का जो पोस्ट होता है वो सेल डिसाइड करता है 11 AM। आफ्टरनून में हम उस प्रोडक्ट के या किसी और प्रोडक्ट के फोटोज़ डालते हैं, सो दैट इफ समबडी वांट्स टू जस्ट सी द फोटोज़। एंड इवनिंग में समथिंग व्हिच इज़ अ लिटिल लाइक अ क्लाउड के लिए डालते हैं, थोड़ा वायरल मोमेंट के लिए डालते हैं, एंटरटेनमेंट। सो एक प्रोडक्ट, देन एजुकेशन, देन एंटरटेनमेंट, यू हैव टू डू ऑल 3 टुगेदर। एंड आई एम नेवर चेंजिंग, व्यू आए नहीं आए दैट्स नॉट द पॉइंट, मेरे डैशबोर्ड पे नंबर्स आने चाहिए व्हिच इज सेल्स, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। एंड टुडे 70% of your traffic या आपकी sales is from Instagram. Yes. Really? Yes, I barely run ads.
Marketing, and I want to know this for the audience. आपका marketing department कितना बड़ा है? I am the marketing department और मैं budget नहीं देती उन्हें because I just make reels. Wow. And it's not something to be proud of, right? जो आप पहले से business कर रहे हैं, but it works, guys. So I mean, I guess a lot of people and जो traditional businesses से है and कुछ हैं जो पहले की seats में and they're like ये क्या हो रहा है? So I think this is a little bit, is it real? Is it not? But when you compare this to a brick and mortar world की जहाँ पे आपको sales करनी है, marketing करनी है, यहाँ पे actually आप content create कर रहे हैं, content से sale हो रही है. How real is this? It is a balance of everything. It's like अगर आप प्रोडक्ट भी बना रहे हो, आप R&D भी कर रहे हो, उसको लिस्ट भी कर रहे हो, सारे ई-कॉम प्लेटफॉर्म्स भी आ रहे हो, उसी के साथ ही एक हिस्सा है विच इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इट हैज़ टेकन ओवर योर टेलीविजन एंड अदर काइंड ऑफ मार्केटिंग एंड इट्स कम टू सोशल मीडिया नाउ. पीपल आर विलिंग टू इन्वेस्ट इनटू मोर visible businesses than stupid it's gonna sound but number led businesses. मेरे numbers इतने बड़े नहीं हैं बट मेरे को बिकॉज सोशल मीडिया पे मैं ज़्यादा पॉपुलर हूँ उससे क्रेडिबिलिटी ज़्यादा मिलती है एंड एक कन्वर्जन ज़्यादा होता है मेरा अगर कोई मेरे स्टोर में आता है तो. सो इट्स अ बैलेंस. इट्स लाइक लिटरली आपका खाना पूरा रेडी है, वो नमक है आपके खाने का. सोशल मीडिया आज की डेट में And उसके बिना there's खाना that नहीं बन trust, सकता. and there's the trust that people find in you. There's this mindset कि अगर आपके पास 1 million followers हो जाएंगे तो automatically sale हो जाएगी. How real is that? कैसे आप followers को sale में convert कर सकते हैं? फॉलोअर्स आर्ट इम्पॉर्टेंट. लाइक मेरे 1.7 मिलियन हैं पारुल गुलाटी के, लेकिन मेरे लाइक्स और कन्वर्जन्स इतने नहीं हैं. लाइक मुझे ब्रांड्स पे करते हैं लेकिन द मोमेंट आई पुट ब्रांडेड कंटेंट इट डजंट वर्क. मुझे लड़के ज़्यादा फॉलो करते हैं गुलाटी पे, मेरे 70% लड़के फॉलोअर्स हैं. We realize that from the attendance of But for niche hair, it's the consumer, it's the buyer, and they are waiting for a new launch. But a lot of buyers may not follow your brand page, but they will consume your content. There are a lot of people जो Instagram पे following पे इतना believe नहीं करते, but scrolling पे believe करते हैं. So आपका गोल है कि आपको लोगों के scroll list में आना है, और वो तभी होगा अगर आप रोज पोस्ट करते रहेंगे और परफेक्शन पे नहीं जाना. मेरी एक दोस्त अभी साथ में मेरे रुकी है. आई डोंट नो इफ शी इज कम हियर. शी इज ट्राइंग टू बी अ कंटेंट क्रिएटर एंड आई हैव टोल्ड हर यू कांट वेट फॉर अ परफेक्ट शॉट, परफेक्ट लाइक, परफेक्ट बैकग्राउंड. देयर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्ट. हम सब ने क्रिंज से शुरू किया है. हमारा जो बिजनेस भी होगा, डू यू थिंक कि आपके मम्मी पापा ने जो पहले बनाया होगा पहले दिन वो परफेक्ट होगा? नहीं होगा. जो आपने पहला पॉडकास्ट किया था क्या वो परफेक्ट था? सो दैट इज we learn from it. When we look back we'll be like क्यों ये क्या पहना है, हमने क्या किया है. But in that moment just do it. नाइकी ने बोला है just do it. And that is true. क्या हर फाउंडर को क्रिएटर होना, एंड रियली वेरी सब्जेक्टिव. कंटेंट क्रिएटर बनना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, आप कंटेंट क्रिएटर बनना इज नॉट व्हाट यू साइंड अप फॉर. यू साइंड अप फॉर मेकिंग अ गुड प्रोडक्ट, गुड सर्विस, गुड समथिंग that people will consume in a B2C business. But it is important to be a face of your own brand because people will buy from you. जब आप, because you guys are mainly the trade organization, you know that कि अगर आपकी goodwill अच्छी होती है, एक deal convert अच्छी होती है. वो आजकल goodwill थोड़ी सी public हो गई है. As a creator, there's this sense of respect जो लोग होते हैं, people are buying your product because they believe in you. तो क्या ज़्यादा important हो जाता है आपको when you're selling a product? Is it harder for you because they can come to you and be like, पार्ले hair extension ठीक नहीं है? Yeah, it happens a lot of times because now I'm so accessible. So many times it happens that people will start asking कि अच्छा हम पे क्या product जाएगा. वो consultation starts anywhere. And if there's a complaint also, if it can be a delivery issue, then also I am targeted कि Parul deliver नहीं करती time पे. So it could be anything it comes to me. So this has goods and bads. But because मेरे पास कोई और option ही नहीं है कुछ और करने का, so I rather take it. So it's something I signed up for. And you enjoy it, right? Love what you do. I do. Like, You went to Shark Tank. So you have some photos of you from the Shark Tank. क्या हुआ था Shark Tank में? What was that experience? Did you think आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा?
I तो generally thought everyone would fight for me क्योंकि मेरा business इतना cool है. But ये भी था कि मुझे business की इतनी knowledge तब तो मतलब जितनी अब है उससे nil थी. तो मुझे लगा था कि मैं अगर इन बिज़नेस के महारथियों के सामने अपनी बिज़नेस की नॉलेज शेयर करने जाऊँगी तो ये क्या मुझे सुनेंगे भी? क्या मुझे सीरियसली लेंगे, नहीं लेंगे? मुझे ये पता था जब मैं अपना रेवेन्यू बताऊँगी और प्रोडक्ट दिखाऊँगी तो दे विल गेट इम्प्रेस्ड बट शायद मेरी बातें सुन के उन्हें डाउट ना हो जाए कि हम किस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं. बिकॉज़ दैट डाउट आई हैड एंड आई वाज़ सो नर्वस. माय पिच वेंट ऑन फॉर 1 आवर. You only saw 19 minutes, 18, 19 minutes of it. And they kept it for the last episode of that season. So I was in second season finale. और उसमें सिर्फ 3 पिच आई थी जिसमें से एक मेरी थी, एक विनीता की थी. Because they take a shark also have them pitch and one more business was there which didn't get the deal. So when I was watching also, I was so scared. But it turned out well. So super, let's open this up for Q&A. Can we have a mic in the audience? So my question to you is, as a woman in charge, how do you make decisions when you are influenced by so many opinions? I don't listen to anybody. I listen to my brain and my heart because the best way to kill any idea is ask 10 people. So don't listen to anybody. If you fail, it's your own failure, right? If it works, it's your own success. I तो don't listen to nobody. I think that's why मेरे दोस्त भी नहीं हैं क्योंकि मैं किसी से सुनती सबकी हूँ करती अपनी हूँ. But you can validate them. उनकी सुन सकते हो. Because अगर कोई कुछ कह रहा है तो एक्सपीरियंस से जैसे मैं भी तो कुछ कह रही हूँ ना एक्सपीरियंस से कह रही हूँ तो सॉरी इज्जत देने के लिए सुन सबको सकते हैं बट करो अपनी. Super. Good afternoon, Parul. Hi, this is Samkit here from Bangalore. So my question to you is, what is the worst advice that you've ever received? Oh my God. So when I was focusing on acting and doing business both, people told me don't post about niche hair on your page. Like keep two identities different. Like for example, if you are an entrepreneur and you are a podcaster, if somebody told you keep them apart, don't own your actual business brain was what I was told. And I hated those people, but I could not tell on their face. And I genuinely thought कि मुझे एक्टिंग का काम इसलिए मिलेगा अगर मैं निश्चय नहीं पोस्ट करूंगी. फिर आफ्टर अ पॉइंट आई वाज लाइक फक इट. So Fair. that was one advice of Right. hiding myself. Quick Hello. question. अगर Instagram नहीं होता पारुल तो आप आज कैसे अपनी मार्केटिंग करते? आई थिंक जो मैंने किया फिजिकल स्टोर्स बट मैं फिजिकल स्टोर्स शायद इतनी जल्दी नहीं खोल पाती. मैंने ये किताब में पढ़ा था 0 to 1 में कि पहले चैप्टर में ये था जब फेम उन्होंने लॉन्च किया था दिस स्पोक अबाउट कि जहाँ भी औरतें होती थी हम औरतों के लिए प्रोडक्ट बनाते थे तो आई वुड गो एनीवेयर वेयर वुमेन वर. आई वुड हैव डन द सेम. आई वुड हैव एंटर्ड एवरी रूम. मैं शायद मेट्रो में भी बेच रही होती. मैं बहुत शेमलेस हूँ. मुझे सेल चाहिए बस. सो मैं मेट्रो में भी बेचती. मैं घर घर जाके भी बेचती. कंटेंट नहीं बनाती बट कनेक्शंस बनाती और आगे आगे लोगों तक पहुंचती. शायद जीतो कम्युनिटी को ढूंढती. उन्हें कहती मेरा प्रोडक्ट आप बताइए आगे रेफर करिए. Parul, thank you so much. You have literally been an inspiration, and Thank this you. conversation has been eye-opening. And at Jito, हम honored हैं that we've had this ability to have you here and talk to us. And really, Thank you. Thank you for having me.